Mohan, along with my co-host Ankita Chandra and Priyanka Chauhan, present you the revival of forgotten memories of the campus. Please look at these pictures, your memories in the video. Ankita, I request you to introduce yourself and take over the proceedings. Thank you, Alok sir. I'm Ankita Chandra, and I did my BTech and MBA from MNNIT Allahabad. Of course, now अब उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो अब मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज। ये वही ड्रोन व्यू है जो आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, और इसको मेरे साथ के ही एक छात्र ने अपने पर्सनल ड्रोन से शूट किया था। Now in this drone, it gives you a full landscape. यही हमारी बीटेक की क्लासेस होती थी जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। एंड स्पेशली जब एग्जामिनेशन टाइम पर हम लोग के क्लासेस चेंज होते थे या शफल होते थे, उस टाइम पर हम सब लोगों के अंदर यही होता था कि हम लोग कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे। Presently, I am working as an assistant professor in Noida Institute of Technology. This is the playground, and if you all remember, यहाँ पर हमारे बगीचे में कोने में गुलाब की बाड़ी होती थी। The front view is the director's office. The opposite side is the admin block. This whole campus area is now being renovated for the teachers of MNNIT, जो आपके right side में screen पे दिख रहा है। Along with this is the whole cafeteria. This is the MNNIT playground, जहाँ पर आप लोगों को अपनी यादें ताज़ा हो रही होंगी जब आप लोग क्लास से बंक मार के चलो क्रिकेट खेलते हैं या चलो बैडमिंटन खेल कर आते हैं। मोस्टली इट वाज ड्यूरिंग दैट क्लास आवर्स जब हम लोग बंक करते थे। अदरवाइज ऑन सैटरडेज और संडेज वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर। दिस वाज द स्टेडियम। यहाँ पर क्रिकेट मैच प्लस 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो एनसीसी परेड होती थी वो आज भी होती है यहाँ पर, अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर ऑनरेबल डायरेक्टर सर। ये अंकिता ड्रोन में अपना ट्रायंगल जो है फेमस वो नहीं दिखा, पता नहीं अब है कि नहीं है। हो सकता है वो ट्रायंगल हो सकता है वो तोड़ दिया हो सकता है तोड़ दिया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैंपस इन होल इंडिया जिस कैंपस के अंदर से रेलवे लाइन जाती है, और पीछे आपको गंगा नदी दिख रही है। अच्छा ठीक है, ओके, गंगा नदी ओके, ऑलराइट, जो कि MNNIT के बगल से ही जाती है, और हम लोग अक्सर जाते थे उस पुल के पार। स्पीक अ बिट लाउडर अंकिता। हाँ, अंकिता वॉइस थोड़ा लाउड। हम लोग आज भी उस गंगा नदी की तरफ जाते हैं, और अक्सर कुछ नहीं तो वहां पर आप खाली समय में अगर टाइम पास करते हैं, so you feel actually great while you are going there. Let me show you another clip. Am I not audible? थोड़ा slightly. You are audible. Just loud. This is the other view of campus. जिसमें आप लोगों को पानी की टंकी दिखेगी। सुबह सुबह काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉगिंग करते हैं MNNIT ट्रैक पे। And this is the famous Ganga Gate through which we used to enter the campus. Remember? बिल्कुल। As you enter the campus, right side पे director's office है, and left side पे there is the famous administrative block. This portion was the SAC or the MP hall, जहाँ पर अक्सर हम लोग जाते थे, and that was the place जहाँ पर काफी सारे concerts होते थे। yes. This is the famous सरस्वती गेट, जहाँ से हम लोग की MBA की क्लासेस पास होती थी। So while I was pursuing my MBA, सरस्वती गेट से ही हम लोग की एंट्री होती थी,
And while you are going through the Saraswati gate, on the left side, you'll find the MP hall or the multi-purpose hall. This hall was used for all types of concerts, all types of programs, events. This is the famous basketball court. This was the cricket ground, and we have a gymnasium as well. This road leads to the boys' hostel. See the railway track, और railway track कोई पार करके आपका boys' hostel आता था. So ये I hope underpass you- है boys hostel का. हाँ जी. So I Yes, hope all yes. of you remember this place. Everyone. Yes. We used to stop the train and to go to sit our bus. ये ट्रायंगल की एक झलक दिखी. That was the legendary. एक झलक इसके बाद ये ट्रायंगल हाँ, अभी भी है. That's nice. This is the Chichi canteen. I mean, nobody names the canteen as Chichi canteen, of course. लेकिन पता नहीं क्यों इनके organizers ने इसका नाम Chichi canteen रखा है. This is the ये famous chai मार्केटिंग वाला. टेक्निक है. This is the famous चाय वाला जहाँ से हम लोग अक्सर पहुँचते थे और चाय वाले के पास सारी इंफॉर्मेशन होती थी. बीटेक में ये हो रहा है, एमबीए की क्लास में ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है. Because that was the central place. So these are all the budding engineers of MNNIT that is being on. ये हॉस्टल का एरियल व्यू है. ये विवेकानंद होगा शायद. मे बी. विवेकानंद. हाँ, ये पहले नहीं था, बाद में बनाया ये. अच्छा अच्छा. This is Tandon hostel. हाँ ये मेरा हॉस्टल था टंडन. This is Malviya hostel and the common mess area. मेस में मेरे फादर एक बार आए थे, कह रहे थे कि उन्होंने इतना बड़ा मेस कहीं देखा नहीं, जो कि जितने 7 लोग डाइन करते हैं. रियली मतलब It's an engineering marvel. There are no pillars inside. It's such a- Yes, वो बहुत बड़ी बात. Right. Single such a big. Yeah. Exactly. So these are the few facts. This has 2 supercomputers, Param 8000 and Param 1000. And the central library has more than 1 lakh books and periodicals. Then they say that we have also designed robots, air pollution control system, structural testing centers, etc. Now MNNIT, under the mission of Government of India scheme, that is GIAN, उसमें हम लोग MNNIT के प्रोफेसर्स काफी सारे फॉरेन रिसर्च स्कॉलर्स को भी अपने यहाँ इनवाइट करते हैं, सो एज टू प्रमोट द क्रॉस कल्चर इंटरवेंशन और क्रॉस कल्चर एजुकेशन सिस्टम को भी इंक्रीज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है. सो नेक्स्ट टू द डायरेक्टर्स ऑफिस देयर इज अनदर ज्ञान सेंटर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन कर रखा है. सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट. So this is all from my side. Very good piece of information. Thank you so much, sir. Well done. Nice. Yeah. very nice. Thank you. Can I just ask a question? What year was this filmed in? Sorry, sir, I didn't get the question. The question is, in what Which year year? was that video taken? I This is the passed out recent in one. 2017. This is the recent one, Arun. All right, okay. No. Let me tell you. I don't recall many The of video earlier shown, it is somewhere around 2015 plus minus 1 year. all right, okay. वो जो अश्वनी करके एक लड़का था ना, he had made the drone and he had started this. Arun, you will not recognize if you go there now. Yeah, and the hostel में ये स्वामी विवेकानंद पहले नहीं था. स्वामी विवेकानंद मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले बनाया, ये 20 या 25 साल पहले. तो बाद वाला मेरे ख्याल से 2 साल पुराना होगा, क्योंकि उसमें भी फ्लाईओवर नहीं दिख रहा. अभी MNNIT और ये प्रोफेसर्स के कॉलोनी के बीच में एक काफी बड़ा सा फ्लाईओवर बन गया है. That starts from पूरा गड़िया to Uptown चौराहा. Oh, okay. Right, sir. Yeah.
तो वो अभी विजिबल नहीं है, वो विजिबल नहीं मतलब कि ये करीब 3 साल वो पुराना अभी होगा। रिसेंटली बना है। आई मीन हाँ, मैं हाँ। पास कर गई हूँ 2017 में, उसके बाद बना है। उसका हाँ उससे बनना शुरू हुआ था। हाँ। Let's proceed. I hope you have enjoyed the campus view. और आपको अपनी बात कहने में थोड़ा आसानी होगी बहुत। अंकिता, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रियंका, आपको कुछ कहना है इस बारे में? स्टार्ट करना है हमको? We'll start the proceedings. Priyanka, you here? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग शुरू करते हैं। अंकिता, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो I invite first Ashok Srivastava sir, the handsome, charismatic singer, actor, and guide to this group. Under his leadership, this group is being managed. And professional profile, I think many of you might not be knowing. Ankita, please little elaborate the profile of Ashok sir. Ankita, you here? Yes sir, I'm there. Yes, please. Ashok, Engineer Ashok Srivastava sir is one of the senior most members of the group, and he plays the key roles of management in this group and advises the admins on a regular basis. Ashok sir, and he has a long experience on the manufacturing of large MNCs and Indian multinationals. He was the executive director of the board of IDL, that is a Swadeshi MNC of Sir Alfred Nobel Group. He has also managed the Bharti Airtel Group, Bharti Airtel Group company as the executive director on the board, and he has worked as the CEO of international business in Uflex Limited, that is an Indian MNC with huge manufacturing operations in Mexico, Poland, and Dubai. Yeah. Sir, please. Hello. Yes, Alok. Thank you very much. Yes. Thanks, Ankita, Alok, and Priyanka. Thank you, Please. sir. All right. Over to you, sir. Okay. My dear Motis and Pearls, welcome to this second episode. The first episode of Bhuli Visre Yade was very nostalgic, and I'm sure this second one is going to be at a higher level of nostalgia with the brilliant start given by Ankita, Priyanka, and Alok to show the video of the college. It's totally different from now what we when we left, but it's still very, very nostalgic. And well, before I talk about the event, I like to welcome you all and honor you with a couple of lines composed by me today. हजारों साल कुदरत दुआ मांगती है मालिक से, हजारों साल कुदरत दुआ मांगती है मालिक से, तब जाके होता है समंदर में एक मोती पैदा. So you all are gems actually. Coming back to the events, well, we organize the event every month with the basic objective of getting connected with the motis all over the world and of different batches. The attraction of getting connected is so strong that we have people, motis, located in Los Angeles, where it's 4:30 in the morning at odd time. And there are some motis in Australia, Sydney, who will have a change of date by the time, it'll be Monday by the time our event ends. It'll be 12:30, past midnight. And well, there are people from Singapore, UK, Myanmar, and it's truly a global group. And we have also started a practice of honoring some eminent motis in every event. So today we have identified 7 eminent motis who have been managing directors or chairmen of the companies and the CEOs. And some will be honored next month when we have a plan of organizing a Diwali event 1 week before Diwali, which will be again full of entertainment with singing, music, dance, mimicry, everything. So we will now be honoring some motis, and there are 7 of them. So I will call their names in alphabetical order, and I'll request them to please wave. It'll be one-way interaction. So therefore, just wave and we'll accept our claps. So the first in the list is Anil Goyal, who
passed out in 1969, and he did MBA from Allahabad University, from the 5th batch of MBA of Allahabad University, and he was the topper in the MBA batch. Then he joined Indian Airlines and progressively rose to the level of Director Commercial and Managing Director of Alliance Air. He won several awards in while working and later. He was the Aviation Man of the Year declared by all the people, and he is on the governing body, advising body of international aviation. He has several qualities, little long list for talking. Time is short. Sometime later, I will tell him his hobbies and the qualities that he has of shairi and music. So, Anil, well, we are proud of you. Now, the next in this list is Arun Srivastav. Arun, can you wave here? Arun Srivastav had joined after passing out Tata's, and he worked with NTPC and SR Power Limited, where he rose to the position of Managing Director. And he's also on the board of several power companies in the world, including GEC, etc. And he is a very, very social person also, and he's fond of writing and investing in share market. He guides us about investment in share market. If you have some money to lose, you can contact him. Okay. Arun, proud of you, Arun. Anyway, there is the next is Arvind Saxena, engineer of 1980 batch. Arvind, can you wave? Arvind is in the next frame. Let me go. Let's see. Arvind, can you hear me? Hi, Arvind is there. Arvind Saxena is from batch of 1980, and he did MBA from Lucknow. After MBA, he worked with the Scots, Bajaj Auto, Maruti, Volkswagen, and General Motors. And he rose to the level of Managing Director in Volkswagen as well as in General Motors. He's a keen golfer and a nice human being, enjoys traveling. Arvind, we are proud of you. Right. Next in the order is very well known personality, engineer Atul Sopti of 1980 batch. Atul, are you in the second frame? Can I see you? Hi, Atul. Hi. Atul Sopti is presently the Director General of Standing Conference of Public Enterprise, widely known as SCOPE. Prior to this, he was Chairman and Managing Director of BHEL, which is one of the largest engineering organization in the country. He is presently a member of EPFO and also a member of World Energy Council. He has been honored with several awards. I can't name all of them due to paucity of time, but I'm naming 7 of them. And these are Eminent Engineering Personality, Most Admired Leader 2020, Excellence Award for Nation Building in 2019, Excellent Contribution in Power Sector Development, CEO with HR Orientation, Visionary Leader in Heavy Engineering, and Excellent Award for Leadership. Welcome once again, and we are proud of you, Atul. Then we have Engineer Hari Mohan of Indian Ordnance Factory Services. He recently retired and he was controlling 11 manufacturing units of 11 ordnance factories. After doing BTech, he did from University of Pune, wherein he topped in BTech in as well as he topped in MTech from Pune University. He was awarded General Vaidya Prize and CVRD Trophy for being the top-ranking student of Defense Institute of Advanced Technology in the field of combat vehicles. He was also CEO for Ammunition Making Unit at Pune and Main Battle Tanks Manufacturing Unit at Chennai. He was awarded Ayudh Ratna for the year 2017-18
and he held the charge of 14 ordnance factory. Harimohan, you've done a great job. We are proud of you, and more so now in the scenario of a war with China, expected war with China. All right. The next is our engineer Kulbir Singh of 1969 batch. Kulbir is the chairman of Roja Group of Companies, which is one of the largest manufacturers of footwear, safety footwear, and personal protection equipments. There's two factories in Agra, one in Bhiwadi in Rajasthan, with an annual turnover of 300 crores, mainly from exports. Really proud of you, Kulbir. Great. All the best in Make in India mission. And the last one being honored today is my brother, Engineer Pradeep Srivastava of 1971 batch. It's very rare to find another Pradeep Srivastava in this world. He has excelled in academics as well as in professional career, as well as sports and social work, all four fields. He did MBA from XLRI after passing out from Motilal and joined Tata Group for over four decades. He was with them, and then he was managing director of Tata Rolls company for 10 years and in, Indian Steel and Wire Products. In the field of sports, he brought laurels for our country by playing basketball for India in several countries. He is still chairman emeritus of Jharkhand State Basketball Association. Currently, he is chancellor of Baddi University. He is giving to the society now in Himachal Pradesh and a director in Navya Technologies. He is the tallest engineer in the world, perhaps, and we are really proud of you, Pradeep, with so many qualities in one person. Yes, sir. That ends our chapter of honoring, and we will have more eminent people in the next event in brief. So, and I'm very excited to start the show, but before we end, I'd read out a couple of lines about this event composed by me today, and it is, ये इस्तिमा है ज़हीन लोगों का. इस्तिमा माने होता है गैदरिंग, और ज़हीन माने होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिजीवी जो आप लोग हैं. ये इस्तिमा है ज़हीन लोगों का, हर शख्स यहाँ काबिल है. ये इस्तिमा है ज़हीन लोगों का, हर शख्स यहाँ काबिल है. अरे दिल थाम के बैठो, ये मोतियों की महफिल है. शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू अशोक सर. अब मैं अपने बैचमेट अश्वनी अग्रवाल को इनवाइट करना चाहूँगा और उनके बारे में बताऊं कि शुरू से थोड़ा ये खुराफाती थे और कॉमेडियन थे, पहले भी और आज भी कॉमेडियन हैं, और बहुत क्रिएटिव माइंड. इसको कहते हैं कि उस समय 1980 में इन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया था, मुझे याद है. कहते थे ब्रुगबान में मेरे शेयर्स हैं, तो उस समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. आज तो हर कोई शेयर में खेलता है. और उसके बाद करने के बाद इंजीनियरिंग उसने ज्वाइन किया कई कंसल्टेंट कंपनीज. HAL में गए, गवर्नमेंट कंपनी थी, उसमें साइन किया, चिड़िया बिठाया, और वो अपनी कंपनी चलाता था, अलग से कंसल्टेंसी फर्म चलाता था. तो वो जो है उसने फैकल्टी पे था इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, और साथ में कंसल्टेंसी फर्म चलाता था. घाट घाट का पानी किया, पापड़ बेला, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कुछ जॉइंट वेंचर्स किए तमाम अदर कंट्री से. और उसके बाद कंपनी बनाई इन्होंने, कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियरिंग की, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया में वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं, और वो बदमाशी अभी भी जारी है उनकी. और एक इन्होंने बुक लिखी थी, शायद वो अंकिता आपको याद है, वो क्या बुक थी? हाँ, इन्होंने बुक लिखी है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, and he has handed this book free of cost to most of the institutes with the condition that that book should be given only to poor students or the students belonging to the financial weaker section of the society. क्योंकि जिनके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं होते, कम से कम वो आपकी बुक ले पढ़ें और उससे ज्ञान अर्जित करें. So that's indeed a great achievement, sir. Thank you very much.
अभी माथुर सर बिजी हैं, तो अशोक सर हमें किससे शुरू करना था आपने कहा था? हाँ हाँ ये बलदेव हो रहा है किससे? नहीं, वो तो अभी बिजी होंगे। नहीं है, आ गए बलदेव, आ गए हैं। आ गए हैं तो फिर उनसे शुरू कर देते हाँ हैं। बलदेव ने जो सीनियर मोस्ट हैं भाई, 67 बैच के हाँ हैं। जी Ashok जी। sir and Alok sir, हाँ बलदेव। हाँ I want to interrupt you both. हाँ बताइए। सर मेरा मेरा जो प्रोटोकॉल है मैं वो स्टार्ट करूं, बताऊं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बताइए, हाँ उसका शुरू So कर देंगे। before we start this entire meeting, so I'm having two buzzer. First one is a 2:45, तो वो intimating buzzer होगा, हाँ हाँ and the last one is last is a 3 minutes. So we have a sufficient time for 3 minutes. So we can start now. ये ठीक है, अच्छा इंटरप्ट किया। Yes, sir. 2 मिनट 45 सेकंड पे Yes, बजर sir. बजेगा, फिर That's 3 मिनट yes. पे पूरा That's बजर बजेगा। yes. That प्रियंका will be आप मॉनिटर करना। great. Yes, ठीक है, sir. थैंक यू प्रियंका। Yes. चलिए बोरा सर। प्लीज आप, मैं 63 में मैंने ज्वाइन किया था मोतीलाल। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, यस यस। थोड़ा अच्छा लाउड बोले तो अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा अच्छा। तो मैंने 63 में मोतीलाल ज्वाइन किया था, और उस वक्त मेरे ख्याल से ये शेर व शायरी और ये सब कुछ नहीं होता था। तो मेरे ख्याल से मैं पहला आदमी था कि जिसको शेर व शायरी से इतना लगाव था। तो जब यहाँ रैगिंग वगैरह शुरू होती थी, तो हमने अपनी शेर व शायरी उनको जब सुनाई सीनियर्स को, तो साहब उन्होंने रैगिंग वैगिंग भूल के और जो है हमारी शेर व शायरी पे ज्यादा तवज्जो दी। तो मुझे कुछ उस जमाने के, आज से 57 साल पहले के, वो जो शेर व शायरी मैंने पढ़ी थी, उसके कुछ नमूने आपको पेश करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। तो सबसे पहले तो ये था साहब के, उम्मीद प्यार से नाराज रहा करती है, उम्मीद प्यार से नाराज रहा करती है, चीज उठ के जिगर से राज कहा करती है, और भले ही ताजमहल सब न बना पाए, मगर दिल में हर एक के मुमताज रहा करती है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तो दिल में हर एक के जो है मुमताज रहती है। एक दूसरा मुझे याद आ रहा है कि सुना आज हमने तुम उनका घर भूल गए, सुना आज हमने तुम उनका घर भूल गए, इसमें पछताना क्या, भूले तो भूल गए, बहुत और खूब। भूले तो हम भी, मगर भूले कुछ इस तरह कि उनका घर याद, अपना घर भूल गए, और पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली महवे ख्वाब हो जाती, तुमने डाली ही नहीं मैं फिजां नजर, वरना शबनम शबनम शवाब शराब हो हो जाती। वाह वाह, बहुत खूब। बात कब कीजिए, जहानत को छिपाते रहिए, बात कब कीजिए, जहानत को छिपाते रहिए, ये नया शहर है, कुछ नए दोस्त बनाते रहिए, और दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, दर्द ही दर्द भर गया दिल में, इतना एहसास कर दिया गम ने, जब किसी की आंख से गिरा आंसू, अपनी आंख पे ले लिया हमने, शिकर न डाल सभी पे शराब पिलाते हुए,
ये मुस्कुराती हुई चीज मुस्कुरा के पिला, और शरीर शराब चीज की मिकदार पे नहीं मौकूफ। शराब कम है तो साकी नजर मिला के पिला। बहुत खूब, वाह, बहुत। वाह वाह सर वाह। आप तो फिराक गोरखपुरी के घर जाते थे ना बलदेव साहब? जी हाँ, मैं तो फिराक साहब के साथ भी शामें गुजरी हैं। मतलब 2-4 पैग हुआ करते थे उनके साथ, और उनकी शायरी सुनने को बड़ा लुत्फ आता था इलाहाबाद में। और मुझे आज भी उनका एक शेर याद है कि हाँ, देखिए भूल रहा हूँ, अब 57 कोई साल बात नहीं है, पुरानी कोई बात बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात सुनाई आपने, और सब लोग ने आपकी शायरी को एंजॉय किया। वेरी गुड। थैंक यू। Nice. So, sir, Priyanka Ankita, before we Yes, sir. continue further, अश्विनी को मैंने इनवाइट किया था, वो आए नहीं। उस ग्रुप का जो विजन है उन्हीं का है। हमने हाँ, उनके बारे में अश्विनी, बताया, लेकिन वो अपीयर नहीं हुए। अश्विनी तुम कहाँ हो? अश्विनी अश्विनी आ गए हैं, हाँ, इनको बोलो। Actually, आ गए हैं। अश्विनी कहाँ हो? मैंने बुलाया, आप आए नहीं। अच्छा ये अच्छा। ग्रुप इन्हीं का है, इन्हीं की प्रोडक्शन है कह लीजिए, जो ग्लोबल मोनेटरी ग्रुप है। तो फाउंडर मैं मेंबर बुला है के अश्विनी। और आप गायब हो गए। तो आप आइए और बताइए सर। Yeah, sorry to interrupt you guys, and बता देते हैं. Yeah, thank you Alok, and thank you all for attending this Bhuli Visri Yade number 2. And today actually I am very happy to see this group is growing with full of high achievers, bright youngsters, and overseas motis. To enhance the connectivity between the global members, time to time we are organizing musical events, quiz, and Bhuli Visri Yade almost every month. And also, as Ashok sir mentioned, we are also including activities like dance programs, mimicry as well. We are also planning a Moti meet at an overseas destination of common interest, might be New Zealand, which will remain pending till international borders restrictions are lifted. I would also like to use this opportunity to remind everyone that the cause of the success for this group is everyone's cooperation, discipline, and respect to its rules. Credit goes to Ashok sir, Mohan sir, Kimoti sir, and Harimohan sirs, and all respected members in maintaining discipline. I, on behalf of this group, would like to recognize the efforts of Alok, Jagriti, Ankita, Priyanka, and Nidhi, who are fuking Jan in our cultural events. Today, Ankita and Priyanka are managing this show under the guidance of Alok's. And I request everyone to provide full support and bajao talis for them. I am sure that today you and your family would love this program. This event is being recorded and YouTube link will be shared for you to forward to anyone that may have missed out. At the end, I would request all members to contact Motis living overseas to join this group by contacting either myself, Ashok sir, Mohan, or Kimoti sir. I wish you, your family and friends to stay safe and enjoy this program and appreciate participants. If someone wants to share college memories, please feel free to send his or her name on my personal WhatsApp for me to include. And this group is for all. And thank you very much. And over to Ankita. Thank you Ankita, very much, sir. now follow the normal schedule. Sure, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your kind words and appreciation. Actually, it is always needed, of course. I mean, so now after Moti, Mr. Baldev Bora, sir, let us start with Dr. B.S. नेगी, दोनों ऊपर से
अंकिता, जी प्लीज फ्रॉम द टॉप, माथुर सर के बाद से। I think now I'm audible. यस सर। हेलो Hello. Hello, QTech. हाँ. हाँ हाँ नहीं Welcome सर, to all global motis. Hello. We Yes can sir, you hear. are audible. Yeah, you can hear. Fine. Actually, I am thankful to the people like Ashwini. Hello. Hello, we can hear you. Fine. वॉइस नहीं आ रहा है, इनको बाद में कर लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। हेलो नेगी सर। हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आई एम वॉइस ऑडिबल आपका टू नहीं है। हेलो हेलो, इस ऑडिबल ना? हाँ बीच में इंटरप्ट हो रहा है। हाँ बीच में हो गया, तब ठीक आ गया। नहीं मेरे को ठीक है, ज्यादा बोलो। टाइम नहीं लगना है। हाँ नेगी बोलो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा अच्छा ग्रुप आपने सुनियोजित किया है। पर्टिकुलरली अश्विनी अग्रवाल जी को, जिन्होंने मेरा नाम भी इंक्लूड किया, मेरे को पहले पता नहीं था इसका। बहुत अच्छा है और बहुत आनंद आ रहा है। एक्चुअली बहुत पुरानी बातें भाई बिसरी क्या, तो ये यादें थी हम लोगों को। पिछले साल हम लोगों का गोल्डन जुबली समारोह हुआ था वहाँ MNIT में, तो मैं भी जो अंकिता ने फिल्म दिखाई है उसको देखा, तो और वो बातें फिर याद हो गई। कुछ नई थी, कुछ पुरानी थी। हालांकि जो 69 बैच का हमारा उन दिनों का जो माहौल था वो तो पुराना हो गया। वो दिनों तो वैसे ही दिल में याद है हमारी, अशोक को भी याद होती रहती होंगी वो चीजें। तो जैसा आपने बोला था भी कुछ इसमें संस्करण है, मेरे तो संस्करण बहुत अच्छे रहे सब साथियों के साथ में। वो खेल का मैदान देखा, वो भी आनंद आया। तो जब मैंने आज इसमें लिखा था कि मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो मेरा इरादा था कि मैं ग्रुप को एंजॉय करूंगा, सुनूंगा। लेकिन अश्विनी जी ने बोला नहीं कुछ बोलना है, तो मेरे को एक स्मृति याद आई। 69 में हम लोग वहाँ फिल्म दिखाया करते थे। एंटरटेनमेंट कम हुआ करता था, तेलियरगंज जाओ पिक्चर हॉल था, तो बीच में हम लोग पिक्चर ला करके वो दिखाते। तो मैं फिल्म सोसाइटी का सेक्रेटरी था उन दिनों। 69 बैच की बात है ये। तो 69 10 51 साल पहले की बात है कि हमारा इंटरव्यू हुआ था। एक हिंदुस्तान स्टील हुआ करता उन दिनों, सेल बनने से पहले। तो वहां पे जब इंटरव्यू पूछा तो मैंने बोला भी मैं फिल्म सोसाइटी का सेक्रेटरी रहा हूँ। बोला जी बहुत अच्छी बात है, आप सेक्रेटरी रहो। कौन कौन सी फिल्म दिखाई? तो मैंने 2-4 के नाम लिख दिए वहां पे, ये मैंने दिखाई, ये दिखाई, ये दिखाई। तो बोला कि आपने क्या ब्लू फिल्म दिखाई? जानते हो क्या होता है? अब मैं मन ही मन सोचा, मैंने कहा सारे सवाल का सवाल तो अच्छा दिया मैंने जवाब, लेकिन यही एक सवाल छूट गया। इंटरव्यू हुआ, अच्छा रहा। लास्ट में उन्होंने पूछा, बोर्ड ने भी तुमको कुछ पूछना है हमसे? तो मैं अब आज मैं उसको याद कर रहा हूँ कि कितना इंप्रेसिंग रहा होगा उनके लिए। मैंने कहा सर मेरे को ये बताओ ब्लू फिल्म होती क्या है? वो सब हंस पड़े, बताया नहीं। बाद में मेरे को खुद ढूंढना पड़ा होता क्या है। तो मैं ये संस्कृत देख रहा था कि हम लोगों के उसमें हर जगह का माहौल था, हर जगह की बातें हुई। वो मैं देखा अभी जो रात भर चलने वाला ढाबा था जहाँ चाय पीते थे हम लोग, मैं अक्सर का तिलक हॉस्टल में रहा करता था, वो माहौल देखा। तो मैं सबसे अच्छा मेरे को स्मृति रहेगी उस माहौल में MNIT ने और मोनिरिको ने जो हमको वातावरण दिया, वो सब हर डायरेक्शन का डेवलपमेंट हुआ और लोगों ने अच्छा खेलने भी आगे। आज आप इन्हें जो प्राइजेस दिए, जो आपने ऑनर दिया है 7 आदमी को, बहुत अच्छा लगा। लोग अपने अपने आयाम में सब डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और हम भी जो होगा कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। तो मैं सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इस ग्रुप को आगे चलाने के लिए जो जो काम करना होगा वो करेंगे। और एक अभी बीच में व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा था कि इस ग्रुप में जो रूल्स रेगुलेशन बने बहुत अच्छे हैं, नॉन पॉलिटिकल, ग्लोबल, तो हम इसको माने और इसके आपसे आगे सब एक सहयोग करें, ब्रदरहुड सिस्टरहुड जो है उसको आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संस्मरण यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सबके लिए। ओवर टू यू अशोक। हेलो। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for your kind words. May we now have some words from Moti Priyanka Chauhan, 2013 batch. अंकिता, वॉइस आपका भी थोड़ा धीरे रहता है, थोड़ा तेज बोलिए। Yeah, so it's my number, Ankita. Yes. मैं तो क्या कहूँ, एज यू नो कि बहुत सारी यादें हैं। जैसे कि मैथ में सैटरडे को क्या बनेगा, पुलाव बन रहा है या फ्रेंच फ्राइज और बन मक्खन बन रहा है,
बहुत सारी चीजें हैं। एक मैं किस्सा शेयर करना चाहूंगी। एक हमारा प्लेसमेंट टाइम पर, तुम्हें पता है बकेट पार्टी होती है कॉलेज में, तो मेरा हम लोग हमेशा पुराना ना शैम्पू वगैरह सबके पास होता था, गंदा बिल्कुल एक्सपायर वाला शैम्पू, वो सब मिक्स करके बकेट में उससे नहलाते थे लोगों को। मेरा एक अलग से होता था, मैं नमक मिर्च मसाले सब मैक्स से लेकर आती थी, वो मिक्स करके फिर डालती थी। तो क्या होता था कि सबको एक्सपेक्ट होता था कि जैम और ये सब डालकर, तो सब लोग एक्सपेक्ट करते कुछ गंदा नहीं है, चलो खाने का ही है कुछ, सब अलग अलग लेकर आते थे। मैं नमक मिर्च मसाले लेकर आती थी, मुझे बहुत मार भी पड़ती थी, लेकिन मैं सबको बहुत मारती थी। Interesting, very good. So that's it from my side. As I'm host, तो मेरा इतना ही sufficient, I think. Good. Nice, nice. मसाले लगाते रहो. Nice. I'll also share my picture. मैं share करूँगी सर, बहुत मारते थे हम लोग. हाँ करो करो. Sure. Thank you, Ankita. Thank you, sir. Bye. Well said. Okay. So next in the group we have Moti Satish Kohli ji from 1969 batch. Come on, Satish. Satish Kohli ji. Unmute करो, सतीश को unmute कर दो, मोहन. वो तो एक सेकंड. मोहन खुद ही muted है. अच्छा. Unmute करो. मोहन कुमार. हाँ, सतीश को unmute कर दो. सतीश कोहली को unmute करो. नहीं हो नहीं पा रहे, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ. सतीश तुम करो unmute अपने सिस्टम से. वो शायद दोनों एक साथ ही कर दे रहे हैं, इसलिए फिर वो अनम्यूट हो जा रहे हैं, म्यूट हो जा रहे हैं. सतीश. हाँ. तो सतीश अनम्यूट करो अपना सिस्टम. तुम्हारा लैपटॉप में म्यूट होगा ना, उसको क्लिक कर दो, अनम्यूट हो जाएगा. सेंट्रल कंट्रोल से नहीं हो रहा है. सतीश तुम ही करो. 6-7 अटेम्प्ट किया, नहीं हो पा रहे हैं. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर. जब तक वो शायद उन्होंने अपने को म्यूट कर रखा होगा, तो यहाँ से नहीं हो पा रहा. हाँ सतीश अनम्यूट करो अपने को. लेफ्ट बॉटम में होगा, लेफ्ट बॉटम में देखिए सर. आप अपने स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉर्नर, उस पे म्यूट का एक माइक जैसा सिंबल होगा. लेकिन वो तो सुन नहीं रहे होंगे. नहीं, उनको आवाज जाएगी. हाँ सतीश कैन यू हियर? अपने को अनम्यूट करो. लेफ्ट कॉर्नर में एक म्यूट का बटन बना होगा ना, माइक जैसा. सर आप उनको फोन कर लीजिए. मैं फोन लगा रहा हूँ. तो नेक्स्ट तब तक कर लेते हैं सर. आगे बढ़िए. सब म्यूट करो अपने को. देखो लैपटॉप में उसमें म्यूट बना हुआ है ना, क्लिक कर दो उसके ऊपर, लाल लाल होगा ना, उसको क्लिक. अच्छा तुमने, अच्छा उसको नहीं हो पा रहा है, उनसे कोई सिस्टम में गड़बड़ है. बाद में जब आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे. आगे बढ़िए आप लोग, आगे बढ़िए. ओके, नेक्स्ट वी हैव मोती सांची मिश्रा जी. जब आ जाए तो मुझे कॉल कर देना. अच्छा वील. मैडम इज फ्रॉम 2004 बैच. मैडम प्लीज. सांची मिश्रा. Shachi Mishra, you here? Yeah, I am able to hear. Shachi, हाँ. Please. थोड़ा वॉइस तेज रखिएगा. हाँ शशि, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बात करना. हाँ, sure. Good evening, respected sir and madam. Today on the occasion of Bhuli Bisri Yade, I would like to share some golden moments of my college days. As you know, my name is Shachi Mishra and I am a 2004 batch pass out, and my branch was electronics. So I have a lots of memories attached to me. Some of the good memories which I want to share with you, like as we get into the college, we have to face
somewhat we call a ragging, which is a type of interaction with our seniors. So that was not a very strict one, but we have to follow some code of conduct there also. Like we have to wear black, we have to wear white kurta pajama, पूरा का पूरा white होता था. Then the pinned dupatta with that. पूरा जो hair होना, that should be a particular oiled one पूरा. तो पूरे ऐसे लगते थे जैसे कि कौन चली आ रही है. और that too we have to go in a line. हम लोगों को सबको लाइन में जाना पड़ता था कि पूरा का पूरा बैच जो है वो लाइन में चला जाता था. तो ऐसा लगता था कि मतलब जैसे कि we are following the strategies of the ants, but we all are white. सब लोग जैसे सीनियर्स रहते कमेंट भी मारते थे, देखो सब चली आ रही है इस टाइप से. कभी कभी क्या होता था, we have to like keep our head down, so we were not able to see and we were not aware of the locations of the college at that time, as we were new in that case. तो जाना कहीं और जाते थे, पहुंच कहीं और जाते थे. और दैट तो एक डर समाया रहता था कि सीनियर्स अगर देख लिए तो क्या होगा. सीनियर्स ने पकड़ लिया तो क्या होगा. तो दैट 1 month was a like a very critical case for us. तो दूसरा एक इस तरह से होता था कि लाइक हाँ, हम लोग का काफी मतलब जैसे कि सुबह की 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती थी. देन वी गेट अ ब्रेक एट 1 PM. सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता था. एंड लाइक आई डोंट हैव अ साइकिल फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम द कॉलेज टू द हॉस्टल. फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स वर दे आल्सो डोंट हैव. क्योंकि उसने नहीं खरीदी तो मैंने भी नहीं खरीदी. मैंने कहा चलो अपना आराम से पैदल करके बातें करते करते जाएंगे. तो जैसे कि हम लोग का क्या आता था, एक कुछ कोड वर्ड्स होते थे लाइक आई टॉनिक जो होता था कि इफ समवन इज वाचिंग द गर्ल्स देन दैट यूजेस द आई टॉनिक. देखो आई टॉनिक जा रहा है, आई टॉनिक. एंड क्रो वॉचिंग, एंड वी यूज्ड टू से लाइक क्रो वॉचिंग, लेट्स डू द क्रो वॉचिंग देयर. तो हम लोग ऐसे करके पूरा रास्ता कट जाता था. फिर क्या होता था, जब 1 बजे पहुंचे हॉस्टल, पता चला कि आधे से ज्यादा तो खाना खत्म ही हो गया. फिर जैसे तैसे खाना खा के फिर से 2 बजे फिर निकल जाते थे. और वहां पे पहुंचे तो पता चला कि वर्कशॉप की क्लास चालू हो गई. और जो प्रोफेसर होते थे वो इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि जरा से भी 5 मिनट लेट हो गए तो जाने नहीं देते थे क्लास में. तो बस एक बार तो मेरा ऐसा हुआ, जैसे वो नाम करे थे मेरे को सर प्रेजेंट सर, ऐसी बस एंट्री मिल गई थी वर्कशॉप में. तो मतलब दीस वाज लाइक द मोमेंट्स इन विच ऐसा लगता था जैसे कि वो DDLJ मूवी टाइप का नहीं होता, तो एंड टाइम पे एंट्री मार ली. उस टाइप से चलता था. फिर जैसे कि उसने प्रियंका ने बताया कि कैंपस प्लेसमेंट के टाइम में बकेट भर के पानी से नहलाया जाता था. तो वी वर लाइक वेरी एक्साइटेड टू फेस दैट मोमेंट कि कब हमारी जॉब लगे, कब हम बिल्कुल बकेट वाले पानी से नहाए हुए. तो दैट वाज लाइक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स होते थे हम लोगों के कि जॉब लग जाना. फिर देन वी आर लाइक इंडिपेंडेंट, वी हैव आवर जॉब इन आवर हैंड. तो दैट इज वन ऑफ द in that case why जब मेरा yes these all things we are also follow in this time also. ये सारी चीजें हम आज भी फॉलो करते आ रहे हैं. रैगिंग अभी भी होता है. ये आपको तेल लगा के आना है विद पिन दुपट्टा एंड ऑल. 1 लाइन पर आपको चलना है, तेल लगाकर आपको चलना है, पूरा ऑयलिंग करके आपको. ये ट्रेंड अभी भी चल रहा है. ट्रेंड आज भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग. यस सही बात. और फिर जैसे कि वैलेंटाइंस डे होता था तो लाइक फ्लावर्स की जगह कॉलीफ्लावर्स मिल रहे हैं कुछ लोगों को. उनकी जो साइकिल की जो बास्केट होते हैं उसमें खूब सारे कॉलीफ्लावर्स डाल दिए जाते थे. वो कहते ये क्या है, इट्स अ फ्लावर, व्हिच इज नॉट अ फ्लावर, इट्स अ कॉलीफ्लावर. सो दैट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट. फिर लाइफ में मैंने सिर्फ एक बार बंक मारने की कोशिश करी है, वो भी मेरा इतना बड़ा फेलियर हुआ था. वो इस तरह से सिचुएशन हुआ था कि हम लोग का मैथ लेक्चर जो था वो जो सर लेते थे वो अपने से ही बात करते हुए लेते थे. कभी समझ में नहीं आता था कि वो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे. तो मैंने कहा चलो ठीक है, सब बच्चे मार रहे हैं बंक. तो जैसे कि जो लेक्चर हॉल्स होते थे, वी हैव टू डोर्स टू एंटर देयर. वन इज फॉर द एग्जिट एंड अनदर इज फॉर द एंट्री. तो सर क्या करते थे कि बच्चे ना बिल्कुल एंट्री वाले डोर पे ऐसे खड़े रहते थे कि वो एग्जिट वाले में ऐसे खड़े रहते थे कि सर एंटर करेंगे हम निकल जाएंगे. और इस तरह से काफी बच्चे निकल गए और मैंने रिस्क लिया. मैंने क्या किया, मैंने एंट्री वाले से ही निकलने की कोशिश की और मुझे सर ने पकड़ लिया. कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने पानी पी कर आती. उस तरह से मेरा बंक भी नहीं हो पाया था अच्छे से. वो सर की भी मेमोरीज काफी अच्छी थी. तो उसमें ज्यादातर क्लासेस में क्या था, वो बंक हो जाते थे. फिर अप्रॉक्सीज का बहुत कॉन्सेप्ट चलता था
कि नाम किसी और का लेते थे और प्रेजेंट कोई और कह देता था। मैम ये हमारे टाइम पर भी हुआ है कि प्रेजेंट कोई और बोल दिया, उसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में काउंट करो कितने लोग हैं, टीचर्स को भी ये बात पता होती है, तो फिर काउंट सबको पता होती है। हाँ, दे नो दिस। हाँ, यस, वो भी तो रह चुके हैं। वही ट्यूटोरियल्स में भी ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में हम लोग सोचते थे कि नहीं हम लोग बड़े मेहनत से आए हैं, सारे क्वेश्चंस अपने आप करके करेंगे, सारे ट्यूटोरियल्स अपने आप लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे जैसे फोर्थ ईयर में पहुंचते ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे लगने लगता है ना कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है ना। हम लोग के टाइम पे तो इंटरनेट फैसिलिटी भी इतनी नहीं होती थी, बहुत टफ है। और प्रोफेसर से पूछो तो वो और भी कुछ घुमा फिरा के जवाब देते, तो फिर लगा कि चलो एक ने कर दिया। अब वो कॉपी जो पूरे हॉस्टल में सर्कुलेट हो रही थी, एक ने कॉपी किया, फिर दूसरे ने कॉपी किया, फिर तीसरे, फिर रात भर वो हमारे कॉपी सिस्टम चलता था। सर यही सब मेमोरीज है, मतलब। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। और रश्मि मैम मुस्कुरा रही हैं कि जब कॉलेज में गई थी तो केवल वो थी और इंदिरा मैम थी। ओनली 2 गर्ल्स वर देयर। करेक्ट, प्रॉक्सी नहीं हो सकती थी, क्लास में अकेले थे। नो चांस। नहीं, वो भी दो बैचेज में थे, एक 76 में, एक 77 में। करेक्ट, तो प्रॉक्सी हो ही नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन ये था कि हमको क्लास से कभी निकाला नहीं गया, और मैं अगर लेट आती थी तो मेरे पीछे लड़के खड़े रहते थे कि रश्मि को एंट्री मिलेगी तो हम सब तो आ ही जाएंगे। If I am late, then everybody got advantage. Well said, well said. This is the concept which everyone follows. Ankita, अगर एक को एंट्री मिलेगी तो everyone will get. Okay, so now on our list we have Moti Shashi Bansal from 1969 batch. Moti Shashi Bansal ji. Shashi, can you find him? Hello. Shashi Bansal, are you there? Yes, yes. हाँ। सुन रहे हो? Come on. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, बढ़िया। लेकिन तेरा अभी म्यूट हो गया है, अनम्यूट करो। पहले आई थी। हाँ, अब आ गई, ठीक है, अब ठीक है। ओके नाउ। हाँ, अशोक। यस शशि बोल। नेगी, मेरे यार, 1965। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है इस ग्रुप में आकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद इलाहाबाद की कॉलेज के सराउंडिंग्स में घूम रहा हूँ। ऐसे दोस्त मुझे मिले। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जहां पर सब लोगों ने हंसी मजाक किया, मैं आपको एक सिंसियरिटी और एक सीरियस बात अपने कॉलेज की, अपने टाइम की बताना चाहता हूँ। 1965 हमारा जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था वो 5 सितंबर 1965 को हुआ था, और 13 एनसीसी बहुत जरूरी थी। 13 अक्टूबर 1965 को हम लोग शिवकुटी में रहते थे। फर्स्ट ईयर में सारे स्टूडेंट्स हम लोग शिवकुटी में। तब तक पटेल हॉस्टल बन रहा था। तो मुझे रात को अपेंडिक्स का दर्द हुआ, बहुत पेन। तो डॉक्टर आया वहां पर, तो उन्होंने कहा कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ। डॉक्टर जब अपने जीके अग्रवाल जी की गाड़ी आई, प्रिंसिपल साहब की, और मुझे कमला नेहरू मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में ले गए, हॉस्पिटल में। और मुझे याद है अभी तक, डॉक्टर नथानी ने, वो आए सुबह को, उन्होंने मेरा देखा इमरजेंसी वार्ड में, और ये मुझे कहा कि आपकी सर्जरी होनी जरूरी है। तो मैं घबरा गया कि मैं बिल्कुल 1 महीना पहले इलाहाबाद में आया। मैंने कहा जी मैं टेलीग्राम दे देता हूँ, अपने ब्रदर को, फादर को बुला लेता हूँ। तो कैन यू इमेजिन डॉक्टर नथानी व्हाट ही सेड कि all sisters attending to you are your real sisters, and all doctors, and I'm your father, and the juniors which are standing before you, they are your brothers. I was, and only thing is that you have to go for surgery in 1 hour's time. मुझे आपको बताते हुए आज इस बात की खुशी हो रही है, मेरे बैच के इतने दोस्त, सतीश, सुनील, धर्मपाल पुरी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, और अशोक,
और बहुत से सारे ऐसे दोस्त थे मेरे, और सीनियर्स के अंदर आर के शर्मा, कश्यप सर, मल्होत्रा सर और प्रभाकर सर, ये सारे के सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे, मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। ये काम मैंने जिंदगी में दोस्ती 1 महीने की कॉलेज के अंदर देखी। ये सीनियर्स ने जिन्होंने मेरी रैगिंग की थी, कश्यप सर ने और आर के शर्मा सर ने, उन्होंने मेरा इतना साथ किया बेहद, और ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता ये दिन। और एक बात और बड़ी खुशी की बात बताता हूँ, वो दिन सो आज मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ उसके बाद इतने साल से। जो हाँ ब्लू फिल्म बोल दिया ना उन्होंने। आपको एक और बहुत बढ़िया बात बताना चाहता हूँ। मैं पटेल हॉस्टल में जब गया 2nd ईयर में, तो मेरे दोस्त ताश खेलते थे, बहुत ताश खेलते थे, और एक कमरे में बैठ के ताश खेलते थे। मैं जनरल सेक्रेटरी था। अशोक सर, अशोक जी सुन रहे हो? हेलो, I can hear you. Yes, go ahead. हेलो, सुन रहे हो? हाँ बोल। तो पटेल हॉस्टल में ताश खेलते थे कमरों में लड़के। हाँ। 3 पत्ती। हाँ, हम भी खेलते थे। हाँ, सब खेलते थे एक कमरे में बंद होकर, पट्टियां बांध के 72 घंटे का रिकॉर्ड। तो मुझे भूख लगती थी, अफोर्ड कर नहीं पाते थे, तो मैं कमरे में जाता था, जनरल सेक्रेटरी दरवाजा खटखटाता था, खोल देते थे। तो मेरा एक था, मैं वार्डन एपी तिवारी जी हमारे वार्डन होते थे पटेल हॉस्टल के, बहुत मुस्कुराने आते। एपी तिवारी जी। तो मैं आप लोगों को जो ताश खेलने वाले लड़के थे उनको कहता था कि अगर नहीं तो मैं तिवारी साहब को बोल रहा हूँ, नहीं मेरा मुंह बंद करो। मुझे 8 आने देते थे और मैं जाके तिवारी की शॉप के ऊपर आमलेट खा के आता था। ये सीन मुझे जिंदगी में कभी नहीं भूलता। और मैंने नॉनवेज भी वहीं से स्टार्ट किया, क्योंकि आमलेट से पेट भरता था। दोस्तों, ये इलाहाबाद जिंदगी में एक ऐसा सुनहरा मौका रहेगा, मैं आज भी मिस करता हूँ। भगवान करे आप लोग सब बने रहे, तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे, और इस कोविड से बचते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं इस ग्रुप के साथ है, अश्विनी जी के साथ है। धन्यवाद। वेल सेड सर, वेल सेड। मजा आ गया सुन के आपका अनुभव। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला। Next we have Moti Kapil Dev ji from 1969 batch. Sir, please. Kapil Dev, the bowler and the batsman, all rounder. Hello. Hello, Kapil Dev, all rounder. Hello everyone. Hello. I have been listening to all the stories being told by others. It's nice to be part of this meet. First, I would like to thank Ashok and Ashwini for having me in this group. It has been a long time back I passed out, but still I have some fond memories of the college days. I will just tell a few events which I remember at this moment. I think it was 2nd year, we went for a NCC camp, and near the camping site, there was a big lake, and the organizers arranged some competition, a rowing competition. And they formed 2-3 teams. And I was in one of the team. After 2-3 days practice, the competition was held, and our team came first. And then they gave us a trophy, and there was a photo shop. And I still have a copy of that photo with me. So that was a great moment for us. Secondly, I had a chance to meet Dr. Lal when he joined the college at his home. I had a meeting with him because somebody from Chandigarh came and stayed with him. He was also our family friend. He called me there, and there I could see Dr. Lal also. He asked me a few questions about college, about studies, because he was new. So that was a great moment for me, and I still remember. Dr. Lal was a great gentleman. So that was a great moment for me. Another thing is
while in the hostel, we were in Patel, and I used to get money order every month, and the postman never had a uniform on, and he used to wear some dhoti and kurta and big tilak with chandan on it, and he would find us anywhere in the hostel and deliver the money. And we used to give some tip to the gentleman. Very nice fellow. So these are just little things which I remember at this moment after a long time, you know. Great. And then we used to go to city, seeing movies and going to restaurants, coming late in the night, all those usual things everybody used to do. But the only thing is, after passing out, I never visited the college again. But one day I want to go there and see all those places where we used to move around. I hope I will go one day. Thank you, gentlemen. Okay, well I just wanted to share this thing which comes to my mind. Well said, well said, well said. वो पंडित जी की याद आपने बहुत अच्छी दिलाई, हम लोग को भी याद है। और वो जैसे 300 रुपया मंगाते थे, तिलक लगा के, और उनके ऐसे चंदन का स्मेल आती थी उनसे। हाँ, और 300 रुपए जैसे कि मंगाया घर से, तो कभी कॉलेज में, कभी हॉस्टल में पकड़ लेते थे, पैसे डिलीवर करते थे। 290 रुपए नोट देंगे, बाकी 10 रुपया क्वाइंस में देते थे। तो उन्हें देते थे 5-10 रुपए का। Very nice fellow. Very nice. Very nice. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Next we have Madam Rita Sahuji from 1980 batch. Hello everyone. Thanks Hello. for this organization. We are really enjoying being associated with all our friends. To cut short, I'll brief a very interesting event. We were looking forward for 2-3 events mostly during our college, like musical event, moods, and sports. So it was a sports season, and suddenly I think our counterparts, boys, they were short of 2-3 points for getting championship. So they had good idea. They came to us and said कि we'll have mixed doubles for 2-3 events, और उसमें जो जीत जाएगा उसकी किस्मत, क्योंकि हम लोग तो कच्चे ही थे किसी भी चीज में. They came, 2-3 people, seniors, they came to us and they said कि this is our proposal. So we participated in badminton and TT, but they insisted for lawn tennis. And all girls, they were not knowing how to play lawn tennis. We had not even seen the bracket of it. But they said, नहीं ये तो challenging है, इस पे ही हमारा decision होने वाला है. You people have to participate. So all 6-7 girls, we went with them to lawn tennis court. 6-7 days we played. They taught us and we learned somehow. And after the second day, we were unable to get up from our beds. It was so hard. All hand and body was heavy. But still we decided, oh, we have to help them. So we learned. We learned servicing, we learned kick, all that. Then final day came and all event was there. And somehow me and my partner, we came in the final. Opposite party was also very strong. So they targeted me mostly for all shots and things. And somehow we could manage and we won. That was a moment when I learned that yes, anything is possible. You can learn anything, take up challenge. And my counterpart, she was so unhappy. She threw her racket. It was broken. Then she was crying. Narration is because we took up the challenge. We were so young. We were not knowing anything. But still in 7 days, we learned lawn tennis and we won. Similarly, so many challenges we have taken in life. But that I remember so much. Well said, well said. Good one.
बाद में टेनिस खेला रीता कि नहीं? हाँ, बाद में थोड़ा खेला सर। रेलवे में आने के बाद? रेलवेज में खेलती थी सर कभी कभी। अच्छा, गुड। या आई टुक कोचिंग आल्सो। ये सर हमारे बैच के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी थी। हमारे बैच में कोई नहीं खेल पाते थे। 70 Ankita, now who is the next now? Next. Now we have Moti D.S. Rawat ji from 1979 batch. Hello. D.S. Rawat, can you हेलो unmute? D.S. हाँ, Rawat. आवाज आ रहा है मैडम मेरा? आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रहा है? दबंग आवाज आ रही है। दबंग। ओके, दबंग आवाज है। सबसे पहले तो सभी सीनियर्स को मेरा तीनों फारसी साधारण, दरबारी और शाही, और सभी मित्रों को नमस्कार। हमारा 75 से लेके 79 तक 3-4-5 मेजर कांड, इंसिडेंट या एपिसोड हुए। गौतम सिनेमा टू नैनी जेल कांड, और एक भांग कांड, सरस्वती पूजा भांग कांड। वन वाज तंजानिया कांड, वन वाज सप्ली कांड, सप्ली एपिसोड या सप्ली इंसिडेंट। तो कभी इनके बारे में और चर्चा भूली बिसरी यादों में करेंगे, किसी को कोई विशेष जानकारी चाहिए हो। अभी मैं एक इंसिडेंट अपनी लाइफ का बताना चाहता हूं। एक हमसे 2 बैच जूनियर थे, मिस्टर मोहम्मद हजाज। वो फिलिस्तीन के थे, पहले ही वाज अ पैलेस्टाइनियन, और उसको ड्यू टू हिज स्ट्रक्चर वी यूज्ड टू कॉल हिम बन मानुस। तो थोड़ा टॉल थे, थोड़ा सा फेस उसका था। मोस्टली 81 बैच के थे जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, और स्पोर्ट्स में वो हमारे साथ वॉलीबॉल और बैडमिंटन में खेलते थे। तो उनका एक इंसिडेंट बताता हूं मैं कि वन डे जब भी हम कभी मिलते थे तो एग्जाम का टाइम चल रहा था, तो आई आस्क्ड हिम, हजाज हाउ वाज योर पेपर यार? तो हजाज जब कहता था तो बड़ा उसका पिकुलियर हिंदी था, हिंदी काफी सीख गया था मोहम्मद हजाज। तो बोलता था कि रावत साहब सेंटम यार, सेंटम को वो सेंटम, ओके वेरी नाइस। मैंने कहा सेंटम, यस 4 क्वेश्चन I did 4 question, 80 marks. 5th question attempted, 10 marks, almost सेंटम यार। ओह वेरी नाइस। फिर दूसरे दिन पूछा इसी तरह से। हजाज के पेपर हुए, आफ्टर जब रिजल्ट आने का टाइम हुआ तो वन डे आई सडनली सॉ हजाज cigarette between his fingers, and he was very silently roaming in the back of the hostels. और मैंने कहा हजाज what happened यार, why are you so serious? Please रावत साहब यार, don't talk to me यार। मैंने कहा क्या हुआ? मैं चलते चलते और वो महाजन की दुकान पे बैठ गया। I just sat in front of him. Just tell me हजाज what happened? तो I failed यार, I failed। अरे मैंने कहा क्या हो गया यार, तुम तो कहता था सेंटम गया। तो हजाज बोलता था कॉलेज का गुंडा लोगों से मेरा दोस्ती, अश्वनी सर से मेरा दोस्ती, कि मोती सर से मेरा दोस्ती, तेला सर से मेरा दोस्ती, राघवन सर से मेरा दोस्ती। टीचर्स लोग जलता मेरे को देख के, मेरे को फेल कर दिया यार। अरे भाई हजाज ऐसा नहीं होता है। नो 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 यू रावत मिस्टर, यू डोंट नो दिस गाइस, ये जानबूझ के फेल करता। तो गुंडे लोगों को, माने जो वैसे लोग थे, मुखर लोग थे, उनको वो गुंडा इंटरप्रेट करके बोलता था। द सैड पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि बेचारा अल्टीमेटली ही कुड नॉट पास द कॉलेज,
और उनको वापस जाना पड़ गया। बोलता था यार मेरे को वहां पर नौकरी इंतजार कर रहा है, एक डिग्री अदद डिग्री का जरूरत है, काश मुझे वो डिग्री मिल जाए, बट ही डिडंट सक्सीड। इस तरह से और बहुत सारे इंसिडेंट हैं। और हजाज का एक और था कि कॉलेज में जब क्लास में टीचर उसको एक दिन बोला कि आज, मैंने बोला हजाज ठीक है, बोला यस यार एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट आज मुझे क्लास में लोग मुझसे बहुत हंसा। मैंने कहा क्या हो गया? बोला जस्ट आई आस्क्ड द टीचर, आई कुड नॉट एक्सप्लेन टू हिम। तो मैंने बोला जाम हो गया यार। तो टीचर बोला मिस्टर हजाज व्हाट आर यू टॉकिंग, ये क्या होता है? अरे यार जाम हो गया। तो उसको ये नहीं पता बेचारे को कि टीचर को यार नहीं बोलना और जाम नहीं बोलना है। तो इस तरह के इंसिडेंट थे। और बाकी कभी भविष्य में। थैंक यू वेरी मच। Okay, all right, very well said. Well said, रावत। वो लंबा चौड़ा गोरा सा भूरी, वो कंजी आंखें और आवाज पतली थी। हाँ पतली थी, थोड़ा बियर्ड रखता था और very handsome personality. And I do remember थोड़ा मुंह चौड़ा मुंह था एंड giant बट बेचारा पास नहीं हुआ। बड़ा आई एम सो सॉरी अबाउट हिम। क्योंकि आई रिमेंबर 81 में भी था एक ईरानियन जैदी तो वो पैलेस्टीनियन था जैदी। हाँ जैदी था। जैदी तिलक में A-B-C D डाउन D उस पे रहता था शायद। वो भी टॉल मोटा सा मोटा सा गोरा। और एक अबुल नसर हसन बहुत मोटा सा था। और उसका जो मटन का पतीला बाहर उसमें ही बनता था, जो विंग में वो बाहर उनको हीटर अलाउड था। मतलब अलाउड क्या था, वो अथॉरिटीज उनको ज्यादा वो नहीं करती थी, तो वो बाहर ही चला देता था पतीले पे जो है। फॉरेन कोटा। दैट जैदी फेलो, जैदी आई थिंक जैदी नहीं था, वो कुछ और नाम था। 81 में था जैदी टाइप का जैदी था, वही टॉल पैलेस्टीनियन 81 में था जैदी था। हाँ Well said. मजा आ गया सुन के। Okay, thank you. Okay, well said. Yeah, now next. So next we have Moti Madam Rashmi Saxena from 1977 batch. Yes. Unmute karo Rashmi. Yes. Yes. So good evening all my seniors. And I've got connected to Monterrey people after a long time. Like I had got lost from all contacts. It is a great effort of Mr. Mohan Kumar, who had asked Indira to join one of the alumni meets, and we went to Allahabad. And उस समय इतना अच्छा लगा। हम हमेशा सपनों में इलाहाबाद को सोचते थे। अब आप सोचोगे कि क्यों नहीं गई, क्या प्रॉब्लम थी? तो ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, लेकिन when you get married, you are always at a lesser priority. So you have to leave all your friends. Your husband's friends are your friends. That is what happens in India. तो बहुत दिनों बाद मैंने realize किया कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है. I have to start my life my own way. So I became very active. और कुछ ऐसा हुआ कि हम अपने 10th जो कार्मल की स्टूडेंट्स थे उनसे दोस्ती बढ़ाई, मोतीलाल की फ्रेंड्स से बहुत दोस्ती करी, स्पेशली इंदिरा एंड ऑल। इनको हमने छोड़े हुए कितने साल हो गए थे। I think we got lost with children and raising them up and all that. So now I am free. I have grandchildren. We are enjoying life and पूरा कॉलेज का माहौल फिर से बन गया। इतना अच्छा लग रहा है, thanks to all the organizers and all those who started this group. I am so fortunate to be a part of this. तो मैंने 1973 में ज्वाइन किया था और शायद कई लोगों को यंगर पीपल में नॉट नो, बट हम लोग के टाइम पर लड़कियां इंजीनियरिंग करें शायद अनहर्ड ऑफ, एटलीस्ट इन यूपी. And when I joined, I was very determined कि नहीं, when boys can do it, why not we? So I joined and एक हमारी क्लास होती थी स्मिथी की. शायद आजकल तो वो सब टॉपिक्स सब्जेक्ट्स, I was from electrical engineering, शायद वो सब सब्जेक्ट्स अब हटा दिए हों, आई एम नॉट वेरी श्योर. अभी भी है ब्लैक स्मिथी, क्योंकि
but करना पड़ता है even electrical. Yes, yes. So First that year is is very common. good, very good. Yes. तो उस स्मिथी क्लास में हम लोग को एक बोल्ट बनाना था और जो लैब के असिस्टेंट थे उन्होंने उसको बहुत हीट किया है एक आयरन पीस को और हमने देखा इतना बड़ा हैमर. So one has to hold the piece by plus and the other person has to keep on hammering till you shape it in a cylindrical thing. I was very excited. I said, हाँ ये चीज तो अच्छी है, ये तो हम लोग को तो कभी अलाउ ही नहीं किया गया घर में ये सब करने को, चलो अभी अब करते हैं. So when my turn came, I picked up a plus and when I moved towards the furnace, then lab assistant said, नहीं नहीं तुम वहाँ जाके बैठो, go and sit there. I couldn't say anything, and it was like hardly a month or two when I had joined. It was first year. I didn't know. I sat and sat, and I saw boys enjoying, laughing, and I'm sitting like a fool. I sat, and for 2 hours I just sat there. He didn't allow me to come near the furnace or lift the hammer or even hold the plus. He didn't allow me to do anything. Then sir came to check क्या-क्या किसने बनाया है. I had nothing to show, so I was like this thing scared what to show, what to do. And when sir came to me just before that, this person comes and puts a nice sample which he had made on my table. So he said, you show this. My God, sir came, he looked at the beautiful sample, he looked at me, he again looked at the sample, he again looked at me, then he looked at the lab assistant, then he walked away. That was the time I said, no, if I have to be engineer, I have to do everything myself. No excuses. So I don't know, these days girls must be doing, but I said no. Carpentry, I did, smithy, what you call, filing and all you do on the... Fitting shop. Fitting. Yeah, so everything I did, and you'll be surprised that carpentry, I was one of the first few who completed. So I said, no, I'm not going to give away anything. I'm not going to, get myself excused for anything. I'm going to do everything. So in my final year, when I went for my training to UP State Electricity Board in Sarojini Nagar, we had a substation. I think it was 33 by 11 kV or maybe 222 by 33. I'm not remembering. So उसमें हम गए सरोजनी नगर. I was staying in Mahanagar. It was very far from Mahanagar. We used to change 2 buses. और पहले तो road भी बहुत अच्छी नहीं थी inside the substation. So we used to cross some of the unkept roads, and we used to go there. उन्होंने हमको सिंगल लाइन डायग्राम पकड़ा दिया, पढ़िए 1-2 दिन तो हमने कुछ समझ नहीं आया क्या है ये. Then I told him I want to see substation. He said नहीं वहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, आप वहाँ पे क्या करेंगे. Then I was very determined. I said, and my another boy with me, he said अच्छा है ना, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्यों जाएंगे 1 महीने तक. I said nothing doing. I am going to be here. मुझे देखना है सीटी कैसा दिखता है, ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है, पीटी कैसा दिखता है, सिंगल डायग्राम क्या होता है. And I really did it very, very sincerely. I mean, all that helped me when I joined BHEL. I was very, very lucky to be selected there. So I would tell all girl students, don't get yourself excused just because we are girls, we will not do anything. So that is what I wanted to say today. And Motilal was such an experience. मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि हाँ ये इतना बड़ा कॉलेज है, क्योंकि हम शायद IIT ही सुनते थे लखनऊ में, तो मुझको नहीं आइडिया था. लेकिन वहां से निकलने के बाद I was so fortunate कि इतने अच्छे हम लोग स्टूडेंट्स निकले कि जो one of the best companies we got selected and we did well. So that was very, very fortunate. And later on I realized it is one of the best regional college in India. So after passing out, I became very proud of Motilal. Thank you very much. We all are, yeah. Well said, man. And well narrated. Thank you. Thank you. Yeah. Could I just add something? Because I recall my first year and I loved the workshop. I really did. And to this day,
I do all my own maintenance in the house. I don't employ anybody. I do my carpentry, my plumbing, everything, all on what I learned in my first year. And so I'm very thankful for that. Yeah, we are. Next. Okay, next we have Moti Ashwini Agarwal ji from 1981 batch. हेलो एवरीवन। Hi everyone. मुझे कुछ बहुत पुरानी यादें हैं जो कि काफी फेडेड हैं, याद आती हैं। ये किस्सा है, ये शायद जब तंजानिया का वार हुआ था तंजानियंस के साथ, तो उसके बाद ये सांडाई वगैरह हुई थी। फिर उसके बाद जो है ये प्रॉक्टर्स और ये वार्डन्स के खिलाफ जो है भूख हड़ताल हुई थी। तो उसमें जो है ये हुआ था कि मतलब कौन कौन वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेगा। तो मैं काफी मोटा था, तो उन्होंने मुझको पकड़ा। तो कहले यार तुम यार 2-3 दिन टिक सकते हो, तुम यार भूख हड़ताल पे बैठो। तो हमने कहा यार हम कैसे बैठे यार, हमारे मौसा जी एक्चुअली वार्डन थे। हमने कहा उनके खिलाफ फिर तो मतलब और भी वो हो गया। कहते नहीं यार तुम्हें तो बैठना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि फिर हम अपने क्लोज रिलेटिव के खिलाफ जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे। अब बैठे तो फिर हमने कहा भी यार हमें तो बहुत भूख लगती है, उसका क्या इंतजाम है। तो लोगों ने बता दिया भाई उसका इंतजाम हमने कर रखा है, तुम चिंता ना करो, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ। तो एक प्रदीप दुबे था, तो क्या करता था कि वो जो एडमिन ब्लॉक का जो एंट्रेंस था वहीं पे हम लोग वो गद्दे बिछा के बैठे हुए थे भूख हड़ताल पे। तो झाड़ी में पीछे जो है वो कटोरे में वो कुल्हड़ में जो है वो गुलाब जामुन रखे हुए थे। तो कहता था वो वहां पे चले जाओ, नंबर 1 कर दे, वहां पे तुम्हारा इंतजाम है। तो हम अपने 1-2 बार वहां उठ के चले जाते थे और गुलाब जामुन खा के चले आते थे। तो दूसरे दिन हमें याद है वो शायद डॉक्टर दास, अगर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बंगाली दादा थे डॉक्टर दास। हाँ वही थे। हाँ, तो वो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर दे आते थे। कहते यार इसका तो साले का ब्लड प्रेशर वैसा ही है। उन्होंने आंख भी मारी हमें, तो हम समझ गए। हमने कहा यार भाई लगता पकड़ लिया इन्होंने हमें। तो फिर हमने अपने मित्र को बताया, हमने कहा भाई ऐसा अब हम आगे नहीं बैठेंगे, तो किसी दूसरे को बैठाओ। तो इस तरह की ये कहानी है, मतलब काफी मजेदार है। और मतलब ये कि बाद में हम जब मौसा ये घर पहुंचे तो काफी डांट भी पड़ी कि तुम साले हमारे खिलाफ ही बैठे हुए थे, हमें पता लगा। तो बड़ा जाम हुआ। अश्विनी, ये भूख हड़ताल का ट्रेडिशन, भूख हड़ताल में खाने का पुराना हमारे जमाने का है। अच्छा। एक बार हम लोग गए थे, एक बार स्ट्राइक हुई थी, भूख हड़ताल, वहीं बाहर लॉन में बैठे। तो जब रुका नहीं गया, रात को 11 बजे तो इक्के से गए लक्ष्मी सिनेमा के पास कटरा में एक ढाबा 24 आवर्स खुलता था। जब वहां पहुंचे तो देखा वहां पर बहुत सारे मोतीलाल के लोग बने हुए थे। अच्छा। तो हम सोचे थे हम ही गए, मैं और मट्टू गए थे शायद, कि चोरी हम लोग गए। वहां देखा तो सीनियर से बैठे हुए थे, सब एक दूसरे से मुंह छुपा रहे थे भीड़ में। नहीं, वो भी क्या दिन थे। वो भी दिन थे। बस वो हमारी कहानी खत्म हो गई भाई। वंडरफुल, वेल शेयर्ड, वेल सेड। बहुत अच्छे। थैंक यू। मैं भी बैठा था अश्विनी, भूख हड़ताल पर बैठा था। नहीं यार, मैं तो मोटा था इसलिए पकड़ा गया जाता था। दूसरी बात ये कि वो हमारे मौसा जी थे, तो वो कहते बेटा तुम्हें मौसा जी के खिलाफ ही तुम्हें बैठाएंगे, तो हमें पकड़ के ले आते थे सब। तो आलोक जी, आप भी रसगुल्ला खाते थे कि नहीं, गुलाब जामुन? नहीं, मैं तो बहुत कमिटेड हो गया। नहीं, मैं तो खाता था। खाने में तो हम कोई संकोच नहीं करते हैं। Thank you, sir. Next we have Moti Vineet Jain ji from 1981 batch. Hello everyone. Good evening, good morning, good night. So last time when I was telling about this Gautam Kand. I think that is we have referred here today also. Rawat Sahab was also mentioning. So I'll just remind some episode of that particular incident. Like what had happened last time, I had narrated that about 3 trucks from our hostel had gone to Gautam. Those trucks were hijacked from Phaphamau Bridge. Phaphamau. So
Yeah. So 2 trucks had reached and the third truck had come little late. By that time, the whole episode was over. And the 2 trucks which had reached in the beginning, so the thing was like this, okay, we reached there, we were having these rods and this, that with us. And we gave a befitting reply to the structure of Gotham Picture Hall at that point of time, because all were angry. There was some news that some incident has taken place at Gotham and some misbehaving has been done with some student of engineering college. So in our batch, that time only 3 months ago we had joined, but we knew the history of Motilal के वहाँ पे तो Gaylord वाले के साथ ऐसा हुआ था, civil lines में बहुत हम लोगों ने झंडे गाड़े हुए हैं. तो we all were feeling ourselves just like IAS officers only, or even above that. So that was the thing we were having in our mind. So when we reached there, after 15 minutes, one battalion had reached along with DM. So that time DM of Allahabad was Mr. Bhurelal. Bhurelal. So he was discussing, we were discussing with him. I was also just standing opposite to him, and he was asking what has all happened. We were narrating him, and he was listening us very peacefully and coolly. But as you know, what happened that some students, they are more kind of मतलब होता है कि हम तो और ज्यादा बड़े वो हैं. So somebody gave a remark on his caste, and as soon as that remark was passed, he was talking so politely, but suddenly everything turned and he just ordered lathi charge. I was not even knowing what can be lathi charge, and when DM is talking so politely to us. But then we realized कि वहाँ से तो पूरा मतलब more than 50-60 of them, they jumped on us and they started hitting us like anything. So we started rushing. So 8-10 of us, we rushed in one particular direction. But when we reached there, we found that पतली सी गली में घुस गए थे. But then the wall was there, which was almost 10-11 feet high. Now we were trying to jump that wall. नहीं तो नीचे तो वो बहुत तगड़े से मार रहे थे. But somehow मतलब 1 or 2 of us could jump that, and फिर वहाँ से हम लोग भाग के then we came back to hostel. So that was one incident of Gotham, what I am telling. Yes. And उसके साथ साथ फिर क्या है कि like I want to mention कि what kind of culture we have seen there. After 2 months there was flooding, maybe in 1978 January or so, there was flooding in Allahabad. Then at night time around 9 o'clock, again same DM had come to our hostel, and he had requested the students to help them to make the protection wall near at Daraganj side and few locations. So he had taken a few students from our hostel. So what I am trying to say is that time we all went again to help them, without thinking just 2-3 months back we had been ill-treated by this same DM. And maybe many of youngsters, they may not be knowing that time we went there for at least 3-4 nights. We had given that kind of service to Allahabad, because that flood was such which had broken some around 100 years old record in 1978. Yeah, right. And Allahabad was in danger. That was the kind of scene that time, because in many places there was breaching on that protection wall along the river Ganges and river Yamuna. And we used to go there at night from 10 o'clock till 5 o'clock in the morning, fill the sandbags, help them to make that protection wall. And after coming back, we used to go to attend our classes. But this is how we have, you can say we contributed for the society also. That was something in our blood that we have to do something. Then one mention about that Tanzania, Jham Rawat Sahab was also mentioning. Just in brief, I will tell you what had happened, how it erupted. Like in one night, one of our student colleague, he came back after seeing movie, maybe around 9:45 or 10 o'clock. And that time, about 18-20 Tanzanian students were admitted in our college, and they had given some fund to government as well as to our institute, and they were given new furniture, and which was far superior than our mess furniture. And our mess tables and seats were in very bad and depleted condition at that point of time. And even the chairs, you will find hardly 60% chairs
compared to the students were available there. So whenever we had to go to take lunch or breakfast, we had to borrow the chair from some other mess and then have it. So that when that student sat on that table, which belonged to Tanzanian thing, because other mess they were closed at that point of time, and they used to put the chair on the top of the table after closing the mess. So two Tanzanians, they came there and they told him, why you are sitting here, and they, while he was having his dinner, and they misbehaved with him. This was the cause of eruption of that Tanzanian incident. And after that, what they did, the light of the hostel area was switched off, and they had some kind of training in warfare training or guerrilla war training, whatever you may call. They took off their tops. They were without tops. In dark, we were not able to see them. They had put oil on their body, and suddenly they came out with the rods, and they had hit a few of our students. One Mr. Rajesh of my senior batch, he was just standing up next to me near this Malviya hostel letterbox only. He was hit very badly. So that after that, this Sindai had taken place, and then we sat on that dharna and all, which Mr. Ashwani was mentioning. And later on, we got new furniture, new chairs in our mess. I think my time is up. So this is the things which I well said, very nice. Well said. विनीत जी एक सवाल और है विनीत जी से। ये गौतम वाला शुरू कैसे हुआ था? जैसे तंजानिया वाला तो फ्लेयर अप हुआ। गौतम वाले में सर, वहां पे ये लोग पिक्चर हॉल में गए थे, कोई तब नई पिक्चर ही लगी थी, शोले वोले टाइप की हो गया कोई सी, तो वहां पे पिक्चर हॉल फुल हो चुका था। लेकिन हम लोग तो ये मानते थे ना, पिक्चर फुल भी है तो तब भी चाहे जाके हम वहां पे स्क्रीनिंग रूम में जहां से वो प्रोजेक्टर लगाए रखते हैं वहां से देख लेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा चेयर लगा दो तब देख लेंगे। तो उस बात को लेके कुछ वहां पे मैनेजर के साथ इन लोगों का झगड़ा हो गया था। मैं बताऊं मोहन? वो साइकिल स्टैंड पे हुआ था। नहीं मैं बताऊं? एक मिनट पहले वो परमिशन ले लो अनीता से, अंकिता से सर। अच्छा अंकिता, नहीं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हॉस्टल में ये खबर पहुंचा था कि टिफनेस और एक उसके साथ कोई और, उसको किडनैप कर दिया है गौतम के आसपास लोगों ने। शायद महाजन गौतम सिनेमा में गए थे, उनको टिकट नहीं मिली। टिफनेस का नाम था और एक दूसरा नाम का मैं भूल रहा हूँ। बैच वालों को पता नहीं, टिकट नहीं मिलने के बाद कुछ हमारे टाइम के लोगों को हम लोग के मैं जानती हूँ, हमारे टाइम में गौतम नहीं था। ओके, संगीत गौतम दर्पण तब भी था। हाँ, वो 60s में थे। गौतम सबसे अच्छा नया था शायद। ये काफी दूर था, ईसीसी के पास, इसलिए शायद आप लोग उतना दूर नहीं जाते होंगे, लक्ष्मी तक जाते होंगे आप। मोहन, संगीत और पायल बाद में बने हैं। गौतम था पहले। पायल और झनकार है जो एक साथ बने हैं बाद में। और गौतम संगीत दर्पण एक ही कैंपस में है। और दर्पण काफी इम्प्रूव कर दिया गया है, अब थोड़ा अच्छा हो गया, उसका नाम स्पेस सिनेप्लेक्स कर दिया गया है। यस। और गौतम और संगीत अभी भी वैसे ही हैं। यस, हम लोग को हॉस्टल में यही पता चला था टिकट के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ है और वहाँ के मैनेजर के साथ इन लोगों का हुआ, मैनेजर ने बदतमीजी कर दी है और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग गए थे कि उसने फिर मार भी दिया था, शायद थप्पड़ वगैरह मार दिया था या कुछ इस टाइप का यहाँ पे खबर आई थी। 9 डेज तक 7 लोग नैनी जेल में थे, जिसको छुड़ाने के लिए फिर हमने क्या था उसमें ये गौतम पाल, एक खान था लखनऊ का, एंड और बैच विनय रंजन शाह और 3-4 लोग और थे। फिर वो करीब 7-8 दिन उनको छुड़ाने में लग गए थे। धारा काफी तगड़ी लगाई गई थी, शायद 302 या कौन सी थी, जो लोअर कोर्ट से नहीं होती है, कुछ ऐसा करके था। लूटपाट का लगाया होगा, आर्सन एंड मेमोरी तो मेमोरी है, स्वीट हो या सावर हो। उस समय तो सर हम लोग जब थे तो कहते थे अरे मार हो गई, चलो उठाओ हॉकी चलो, ये नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कर्टेन रॉड खूब उठा देते थे, कर्टेन रॉड हुआ करती थी, तो वो सबसे ज्यादा यूज होती थी इसमें। एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि कैसे सारे हॉस्टल को इकट्ठा करते थे। तो ग्राउंड फ्लोर पे एक जगह था सर्किट ब्रेकर, जिससे कि पूरे हॉस्टल का लाइट चला जाता था। तो उसको अगर आपने 3 बार ऑन ऑफ कर दिया तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कर्टेन रॉड, जो लोहे के रॉड जिसपे कर्टेन लगा रहता था, उसको निकाल के नीचे आ जाना है। वो कहीं तोड़ने जाना है, किसी को मारने जाना है, कुछ बलवा करने जाना है,
So that used to be the signal. So thank you Vinay ji, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया वो. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Next in list we have Moti Deepak Malik ji from 1979 batch. Deepak Malik, can you hear? Hello. आपका सर म्यूट अनम्यूट कर दीजिए सर. Are you here? Deepak, unmute करो. हाँ ठीक है. That's fine now. Can you hear me? Yeah, now we can hear you. Yes. Yes. Good evening, my seniors, colleagues, and my dear Motis and Pearls. मेरे को इंसिडेंट एक स्विमिंग का जो टीम बनना था, स्विमिंग टीम जो है वो सिलेक्शन हो रहा था यूनिवर्सिटी कैंपस में स्विमिंग पूल में. वन ऑफ माय फ्रेंड दिगंबर झा फ्रॉम नेपाल, वो मेरे को बोला कि यार चल मलिक स्विमिंग टीम का सिलेक्शन हो रहा है और चलो मेरे साथ. मैंने कहा यार मेरे को स्विमिंग अभी आती नहीं है, मैं कभी पानी में उतरा नहीं हूँ. बोले चल 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 हो जाएगा, 12 लोगों को सिलेक्ट करना है, तेरा हो जाएगा उसमें. मैं कहा कैसे हो जाएगा यार? बोले चल अच्छा मेरे साथ चलो. तो मैं उसके साथ चला गया और मेरे पास स्विमिंग कस्ट्यूम भी नहीं थे. 5 के बैच में जो है वो भेजा गया. 15 लोग थे हम लोग, 14 या 15 लोग थे. तो पहले सेकंड बैच में मेरे को उतारा गया उसमें. तो अंडर गारमेंट जो मैंने पहना हुआ था, मैंने जैसे डाइव मारा तो अंडर गारमेंट मेरे टांगों में नीचे फंस गया. और चौरसिया सर थे, हमारे कोच थे वहाँ यूनिवर्सिटी के. उन्होंने मुझे साइड ट्रैक किया, चैनल से मुझे बाहर निकाला और मैंने फिर दिगंबर झा का जो है अपना स्विमिंग कस्ट्यूम लिया. दिगंबर झा ने मुझे एक गुरु मंत्र दिया था. उसने कहा कि मलिक तू अपना सिर मत डूबने देना, बाकी तो हाथ पैर मारते रहना तो पहुंच जाएगा उस तरफ. सिर अपना ऊपर रखना. तो बस मैं जो है उसमें मैंने डाइव मारा और सिर को मैंने ऊपर रखा, हाथ पैर मारता रहा और मैं उस किनारे पे पहुंच गया. 50 मीटर का था वो, ओलंपिक साइज का. और जिंदगी में पहली बार मैं स्विमिंग पूल में कूदा था. मुझे पता ही नहीं था स्विमिंग क्या होती है. और आई वाज सिलेक्टेड इन द टीम. कॉलेज टीम में सिलेक्ट हो गया था मैं 12 में. दिस इज माय इंसिडेंट जी. आई फिनिश. Good, very interesting. Thank you. Thank you so much, sir. Now we have Moti R.K. Verma ji from 1978 batch. वर्मा सर है? राकेश वर्मा. हाँ. Hello. Yes, sir. Well, Rakesh, we can hear you. Just a minute. Sorry, dear. Hello. Yes. Sorry, dear. हाँ. Actually, I was not well. मैंने बताया था. तो मुझे पता चला कि ये शायद कुछ म्यूजिक का प्रोग्राम है. मैं उसी हिसाब से इसको ज्वाइन किया था. तो मुझे कोई मेमोरी ऐसा शेयर नहीं करनी है. बस आप लोग के सुन के बहुत मजा आ रहा है. ठीक है. वेरी नाइस. आपने गाना तैयार किया है तो 2 लाइन गाना है. सुना दो, जो गाना सुना दो 1-2 लाइन. लेकिन विद द परमिशन ऑफ अंकिता. बिल्कुल श्योर सर, प्लीज. हाँ 2 लाइन बहुत अच्छे सिंगर है. 2 लाइन सुना दीजिए. मोहम्मद रफी की आवाज एकदम. ओके. जस्ट होल्ड ऑन. Are you getting all right? Yes, sir. जिंदगी की महफिल में हम अकेले, दामन को कोई छूए, जुल्फों से कोई खेले,
आजा रे आजरा लहरा के आजरा आंखों से दिल में समा आजा रे आजरा लहरा के आजरा आंखों से दिल में समा आजा रे आजरा थोड़ा वॉइस वॉल्यूम बढ़ा दो राकेश। It is on full, sir. Just hold on. एक मिनट। Volume is full, sir. देख फिजा में रंग भरा है मेरे जिगर का जख्म भरा है। देख फिजा में रंग भरा है मेरे जिगर का जख्म भरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे हाथ में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आजरा लहरा के आजरा आंखों से दिल में समा आजा रे आजरा। अपना सुलगना किसी को दिखाऊं सांस के तूफान कैसे छुपाऊं। अपना सुलगना किसी को दिखाऊं सांस के तूफान कैसे छुपाऊं। आंखें क्या क्या देख रही है दिल से जो गुजरे कैसे बताऊं। आजा रे आजरा लहरा के आजरा आंखों से दिल में समा आजा रे आजरा। क्या कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। ओके जस्ट मिनट। तेरे भी दिल में आग लगी है मेरे भी दिल में आग लगी है। तेरे भी दिल में आग लगी है मेरे भी दिल में आग लगी है। दोनों तरफ है किसी हालत दोनों दिलों पर बिजली गिरी है। आजा रे आजरा लहरा के आजरा आंखों से दिल में समा आजा रे आजरा लहरा के आजरा आंखों से दिल में समा आजा रे आजरा लहरा के आजरा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, awesome. It was awesome, राकेश। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि राकेश जी को नहीं मालूम कि उन्होंने गाना गा के हम लोग फिर हॉस्टल डेज का याद दिलाया, क्योंकि उस समय भी हम लोग इन्हीं का गाना सुना करते थे। तो यू हैव टेकन बैक अगेन। थैंक यू। पूरी दिल की तड़प वैसे ही है। हाँ हाँ हाँ, आवाज भी वैसे ही, बहुत सुंदर आवाज है। थैंक यू, थैंक यू। Now Ankita was the next now.
The next one is JP Srivastav, sir. Is he Are there, you JP? there? I don't know. JP, are you there? नहीं, JP श्रीवास्तव जी दिख नहीं रहे हैं। हाँ, JP Srivastava is not visible here. नहीं, दिख नहीं रहे हैं। उन्होंने कुछ बोला था कि शायद he may not be there. Okay, then perhaps he is not here. So we can go as per the routine now. Okay, we can wrap up now, I think, with the. Anybody else who wants to present or express his views? Yeah, there is one request, I think, on my WhatsApp. So please, sir, share. So it will be last. सतीश कोहली का ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, सतीश कोहली सर। सतीश कोहली आपका ठीक हो गया कि नहीं अभी? अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, उनके सिस्टम में गड़बड़ है। ओके, वो नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी रिक्वेस्ट आई है बोलने के लिए उनको ले लो, फिर then we'll wrap up and we'll tell Hari Mohan to speak the closing remarks. Now he's not responding probably, so we'll have to go winding up this as per schedule. विनीत जैन बोल रहा हूँ, जरा एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, बोल दो। हाँ, बोलो विनीत। ये एक्चुअली 1980 में हम लोग का शायद मूड्स का स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मूड्स के नाम से नहीं होता था। और पहले होता था सब 79 भी मूड्स था। 79, 80, 81। 79 से हुआ था। 79 से हमारे टाइम 78 was the first. Mood 78 was the first one. Mood 78 was the first one, yes. अच्छा, एक्चुअली उससे पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने इतना एंजॉय किया अपने कॉलेज और स्टूडेंट लाइफ में। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और अभी संजीव सक्सेना यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो हम लोग के उस टाइम के हीरो थे। इन्होंने वहाँ गाना गाया था, का करूं सजनी आए ना बालम वाह। तो ये तो जब भी मिलते थे हमें इसी नाम से, और इनको ये गाना गाते हुए अपना छेड़ा करते थे और मिला करते थे। चलिए, यही बोलना था। संजीव सक्सेना है शायद यहाँ पे रैप अप करने के लिए। हाँ, अब रैप अप करना चाहिए हम लोग को। फिनिश किया जाता है, टाइम भी हो गया। वेरी मच या 2 घंटा हो गया। ठीक है। हाँ, अंकिता। Yes, sir. हाँ, now बिल्कुल बिल्कुल। It was great having all of you. बहुत मजा आया। I mean, आप लोग तो हमसे बहुत सीनियर्स हैं, तो आप लोगों के जमाने में भी ऐसे ही होता था। हमें लगता था, जैसे हमारे टीचर्स बोलते हैं, ये बैच सबसे नालायक बैच है। अब मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं। अपने टाइम पे सब वैसे ही होते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, नाउ आई एम ऑल्सो अ टीचर। तो जब स्टूडेंट्स मास बंक करते हैं ना, मुझे अब लगता है कि टीचर्स क्यों डांटते हैं। टीचर शुड बी वेरी हैप्पी, बिकॉज आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। स्टूडेंट्स ठीक है, जाओ मत पढ़ो, बट व्हेन देयर इज अ मास बंक, टीचर्स आर द हैप्पीएस्ट वन। ये स्टूडेंट लाइफ ही तो है जो याद रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वेल सेड। बट अंकिता, एक चीज है कि अब हमारे टाइम पर ना रैगिंग नहीं होती। 2010 से रैगिंग कंप्लीटली। अंकिता तो टीचर भी है ना अब। नाउ शी हैज बोथ द हेड्स। यस, सो आई हैव बीन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। और मुझे लगता है कि हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा मस्ती करते थे। एंड एक्चुअली आई एम एनवियस ऑफ माय स्टूडेंट्स। जब मैं कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, सो देयर आर पीपल हु हैव म्यूटेड, और उसके बाद देयर आर सम पीपल डोजिंग ऑफ लाइक दिस, मैम सुनाई नहीं दे रहा। So all these things are there. So that is actually irritating from the point of teacher. But things go on. I mean, we need to enjoy each phase of life. Very true. As student life is सुभाष, over. देखा तुमको मैंने। मैंने कहा अगर टाइम हो तो एक दो संस्मरण मैं भी सुनाना चाहता था। जी जी बोलिए। अगर टाइम हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए 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 सर। सुभाष सर। सर बोलिए, कहाँ गए? हाँ सर बोलिए। मेरा ख्याल है
नहीं, शायद कुछ गलतफहमी में होंगे। हाँ, कि कक्कड़ साहब कहीं अब दाएं बाएं देख रहे हैं, बोलने के नहीं दिख रहे हैं। हाँ, चलो अंकिता इसको। ओके ओके। Okay. Yeah, Ankita, continue. Okay. So, may I have Hari Mohan sir ji? For closing remarks. For closing remarks. Is Hari Mohan sir there? क्यों नहीं होंगे? आ गए। Sir, please. Sir, you are muted. Hari Mohan, unmute. हाँ कहिए अपने को. हाँ, right now, ठीक. Very good evening from India, and good morning and good night to all the esteemed members which are present here. And today I was really, though I had kept sometimes my video off, but I have been there throughout the event and I have been listening. Slightly I was unwell, so I was taking a break. That was the only reason. But I find that this our togetherness, remaining connected, it is really adding lot of value to our lives. And as I could see from the narrations given and the experience shared and the feeling shared, that today, like Madam Saxena from Singapore, she shared that now I am connected to my college. Like that, many of us have that feelings that we are able to connect and we are able to be together. I have been saying this earlier also. Let me just share with you that I have been a part of many groups from 2014 onwards, last 6 years. And I have seen all kinds of ups and downs in the groups, because, two people start fighting and everybody starts justifying. All these kind of problems happen. So luckily we have some senior people to guide us, and there is a group of admins who are trying to streamline things, that whenever anything untoward, unwanted happens, then we are able to contain it very quickly. And I'm telling you, that is one of the most essential part. Otherwise, once the problems start in the group, there are many people, they start feeling that यहाँ भी वही क्या बोल रहे हैं, हमारे मोती वाली लैंग्वेज में जाम हो गया, अब यहाँ से छोड़ो. और ये भी ग्रुप में यही सब बकवास चालू हो जाती है. मेरा अपना पूरा 1980 बैच का ग्रुप है. मैं पिछले 15 दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि उसमें पॉलिटिकल मैसेजेस आप बंद करो, तो वो सब लोग कह रहे हैं अरे पॉलिटिकल मैसेज बंद करेंगे तो फिर एंजॉयमेंट कैसे होगा, और बोलो क्या केवल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहेंगे क्या. All kind of there will be 1 or 2 people who will be trying to vitiate the atmosphere of the group. But here I find that या तो भाई ब्लैंक भेजे तो आदमी प्रिंट आउट करा ले, है ना, लेकिन उसमें नाम प्रदीप का नाम लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है. राकेश शर्मा जी को म्यूट करें, राकेश वर्मा जी को म्यूट करें. वेरी सॉरी. No issue, sir. No issue. So what I just want to mention that somehow I have a feeling that the group is able to run quite efficiently, and it is now I think more than 3 months, and lot of effort has gone into connect to lot of global personalities, our Moti alumni, and I only want to mention that the group is really going in the right direction. We have all kind of connectivity. We are enjoying the group without any unwanted messages and without any overheads in the group. And I would only appeal to all the esteemed members that let us remain in this spirit. Recently, you might have seen that there were some people, they were trying to show some of their own achievements. See the kind of complexion we are having in this group, the kind of composition we are having in the group. Everybody is almost 70% of people will qualify to be in the area of being diggaj. So अगर हम उन किसी भी एक व्यक्ति का गुणगान इस ग्रुप में करना चालू करेंगे तो फिर उसका कोई एंड नहीं है. तो इसलिए
कभी कभी एक आध दो घटनाएं घट जाती हैं, तो मैं केवल सारे ग्रुप मेंबर से गुजारिश करता हूं कि अगर कुछ भी आपको कभी कुछ लगता है तो हमारे जो एक ग्रुप ऑफ एडमिन्स हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं अपनी व्यूज, एंड wherever any correction is required, I am of the opinion that they are always open for any correction, and that is how you have seen that our rules got refined, and if there is any refinement is required in the rules, that also the leadership of the group is willing to consider, and whole purpose is to remain connected, and that is I really feel very happy. And आज इतनी सारी पुरानी बातें शेयर की गई, तो हमको कई बार ऐसा लगा कि हम लोग कॉलेज में पहुंच गए, हमको ही क्या कई लोगों को लगा, और ये सब बड़ा आनंदित होता है, सबको बड़ा अच्छा लगता है, और ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने सुनिश्चित किया है कि वो संडे को 5 बजे रखते हैं। ये समय भी उचित है, कुछ लोगों के लिए रात है, कुछ लोगों के लिए सवेरा है, और हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो बड़ा कन्वीनियंट है कि संडे इवनिंग 5 o'clock. So thank you very much to everyone for joining on invitation of the group. Thank you very much, and thanks to the group leadership for honoring me today. Thank you very much. Namaskar. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Let's end. अशोक सर, चलते हैं फिर हम मिलेंगे, मौकी जब कहेंगे यही ज़ूम पे। प्रियंका, हाँ, यही ज़ूम पे, वही जहाँ सारे मोती आते, यही वही जहाँ सारे मोती आते, यही अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। थैंक यू सर। Bye. Thank you very much. Thank you.